हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है जो एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हैं और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत करेगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगी और हर एक सब्जेक्ट का होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे जो एग्जाम में आएगा। देखिए, इन क्वेश्चनों को करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं दूसरे व्यक्तियों की तरह ये नहीं कहूँगा कि 100% आएगा, 100% आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, जो समझेंगे, वो ज़रूर ये कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए जो मुझे लगा महत्वपूर्ण है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और इसको अगर आप समझ लेते हो तो ये एग्ज़ाम के लिए भी महत्व रखेगा। और यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने सारे सब्जेक्टों को लेके आया है क्वेश्चन पेपर, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये सब तब देख पाओगे जब आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। और ये देखिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखेगा एग्जाम व्यू से, तो ये आपके लिए ज़रूरी भी है। चलिए देखते हैं आज हमारे समक्ष कौन सा क्वेश्चन पेपर आया है। टुडे वी डिस्कस वन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हियर, क्लास 10th NIOS board social science here. Question on your screen, the question here, wetland. You know that the most important information here, wetlands and characteristics here. First of all, you know that wetland are those area where the soil is covered with the water can present near the ground throughout the year. You know that, you understand? The wetland are those areas where the soil is covered with the water or can be present near the ground throughout the year. It supports both a terrestrial and aquatic species. You know that there is a support here both the terrestrial and aquatic species here, and they vary widely depending on the climate, soil, vegetation, hydrology and chemistry and human disturbance. That's important here. There is a climate, soil, vegetation and hydrology, chemistry as a human disturbance. There is dependent here. And this area can be found from to the tundra to be a tropics apart from the Antarctica. You know that is found from tundra to the tropics apart from the Antarctica. The water found in the wetland is two types. The water found in the wetland land is a type here. It is either brackish, salty water, or fresh water. You know that's important. Brackish water, salt water, and fresh water. And let's see characteristics of wetland here. The characteristics of wetland on your screen. The wetland can be found in a variety of setting. The wetland can be found in a variety of setting including rivers and the lake, coastal area and inland depression. That's most important characteristics of wetland here. And the next year, they are characterized by the presence of water loving plants. The water loving plant on this area and hydrophytes. That's the more important characteristics here. The waterland is a weather. Wetland is the most important plant. There is a water loving plant and hydrophytes which have adopted to be wetland environment and by developing specialized features such as a floating leaves, the floating leaves and waterlogged stem and oxygen transport system. You know that is the most important characteristics is a wetland plant here. And the next here, these plants supply a variety of ecosystem service such as a nutrient
cycling carbon and sequestrations and habitat for a wildlife. You know that's important. There is a nutrient cycling is present here on ecosystem and carbon sequestrations and habitat for a wildlife. Wetland are also is a degraded by there is a hydric soil which are the characterized by the situations of flooding for extended periods and the development of anaerobic condition. That's important. The development of anaerobic means without a presence of oxygen, and that favor the growth of microorganism. The microorganism growth here without of oxygen, such as a bacteria, fungus, that are responsible for decomposing organic matter. That's important. Such a bacteria as a fungi that are responsible for the decomposing organic matter. These soil are important for regulating the water balance of wetland, as they can store and release water over to time, and also for supporting the growth of wetland vegetation. That's important. There is soil are most important for the regulating the water balance of wetland, and as they can store and release water over time, and also supporting the growth of wetland vegetation. That's important characteristics of wetland here. That's important for the exam point of view here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कक्षा 10वीं NIS बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो है सोशल साइंस का क्वेश्चन है, और देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारे समक्ष जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्व रखेगा कि आर्द्रभूमि। देखिए आर्द्रभूमि का मतलब होता है वेटलैंड, जहाँ पर ऐसी कंडीशन बनते हैं जहाँ वाटर भी होती है और लैंड भी होता है, इसलिए हम इसको वेटलैंड कहते हैं या आर्द्रभूमि भी कह सकते हो। देखा जाए तो आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी पानी से ढकी रहती है, यानी जहाँ की मिट्टी पानी से ढकी रहती है या पूरे वर्ष ज़मीन के पास मौजूद रह सकती है। यानी देखिए वेटलैंड का मतलब यही होता है आर्द्रभूमि का कि जिस क्षेत्र में पानी जो है काफ़ी मात्रा में हो और लैंड भी हो, यानी कभी लैंड हो कहीं वाटर हो, कहीं लैंड है कहीं वाटर, तो इस तरह के क्षेत्र को हम आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। और यह स्थलीय और जलीय दोनों प्रजातियों का समर्थन करता है, यानी इसमें जल में रहने वाले जीव भी होते हैं और ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु भी होते हैं, यानी स्थलीय और जलीय दोनों प्रजातियों का ही समर्थन करता है अर्धलैंड। और वो जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जल विज्ञान, रसायन विज्ञान और मानव अशांति के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। तो ऐसे लैंड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जीव जंतु के लिए, और इसे आदर्श लैंड भी कह सकती हो। ये क्षेत्र अंटार्कटिका के अलावा टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक पाए जा सकते हैं। तो ये देखा जाए तो काफ़ी इसकी लंबी इतिहास आ जाती है कि ये जो है अंटार्कटिका के अलावा टुंड्रा के क्षेत्रों में भी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी इसको पाए जाना स्वाभाविक होती है। आर्द्रभूमि में पाए जाने वाले पानी दो प्रकार के हो सकते हैं, यह तो खारा हो सकता है या खारा पानी या मीठा पानी। तो देखा जाए तो ये आर्द्रभूमि काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं हर एक जीव जंतु के लिए, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतु की आवश्यक सारी सामग्री उपलब्ध होती है। यहाँ पर पानी की भी उपलब्धता होती है, तो यहाँ जो है ज़मीन के क्षेत्र भी पाए जाते हैं, और ये एक आदर्श जगह होता है जहाँ पर जीव जंतु को फलने फूलने में काफ़ी मदद करता है, और ये दोनों तरह के जीव जंतुओं को सपोर्ट करती है, चाहे वह स्थलीय हो या जलीय हो। क्योंकि देखा जाए तो ये क्षेत्र अंटार्कटिका के बहुत से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, और साथ में देखा जाए तो टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक भी इसका अपनी महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर जो पानी पाई जाती है या तो पानी खारा होती है, खारा पानी देखी जा सकती है,
और इवन कि यहाँ पर खारा पानी के साथ साथ मीठा पानी भी होना काफ़ी महत्वपूर्ण इन क्षेत्र को बना देती है। चलिए अब देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। हमारे समक्ष आ गया है कि अर्धभूमियों की क्या विशेषताएं हो सकती है। अगर हम पहली विशेषता की तरफ अगर ध्यान आकर्षित करें तो कहते हैं अर्धभूमियाँ विभिन्न प्रकार की सेटिंग में पाई जा सकती है। यानी अर्धभूमियाँ जो है विभिन्न प्रकार की सेटिंग में पाई जाती है, जिनमें नदियाँ और झील, तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय अवसाद शामिल होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अर्धभूमियाँ विभिन्न प्रकार की सेटिंग में पाई जा सकती है, जिनमें नदियाँ और झीलें और तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय अवसाद शामिल होते हैं। उनकी विशेषता पानी से प्यार करने वाले पौधे जो हाइड्रोफाइटा की उपस्थिति है। यानी देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं वो पानी से बहुत ही प्यार करते हैं और इनको हम हाइड्रोफाइटा की कैटेगरी में सम्मिलित करते हैं, जिन्हें तैरते हुए पत्ती, पानी से भरे तने और ऑक्सीजन के परिवहन प्रणाली जैसे विशेष विशेषता विकसित करके अर्धभूमि पर्यावरण के लिए अनुकूल हो जाते हैं। यानी देखा जाए तो इस क्षेत्र में ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे कमल आपको पानी पर तैरते हुए नज़र आता है, उसी प्रकार के पेड़ पौधे जो होते हैं यहाँ पर उगते हैं। और ये पौधे जो है पानी के अंदर ही होते हैं, क्योंकि इनको पानी से बहुत ही प्रेम होता है। इसलिए इसको साइंटिफिक तौर पे देखा जाए तो हाइड्रोफाइटा की कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। और देखा जाए तो ये अर्धभूमि पर्यावरण के लिए अनुकूल बना लेते हैं अपने आप को। और इसके साथ देखा जाए तो ये पौधे विभिन्न प्रकार की परिस्थिति तंत्र सेवा प्रदान करते हैं। यानी पहाड़ी तंत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं हर एक जीव जंतु के लिए आश्रय के साथ साथ भोजन भी प्रदान करते हैं। इसलिए देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं वो पहाड़ी तंत्र की महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं, जैसे पोषक तत्व, चक्रण, कार्बन पृथक्करण और वन जीवों के लिए आवास। तो ये काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि जो वेटलैंड के ये क्षेत्र होते हैं वो सभी के लिए आदर्शमय सिद्ध होते हैं। वेटलैंड की उनकी जलयुक्त मिट्टी द्वारा भी पहचाना जा सकता है। यानी अगर हम अर्धभूमि की पहचान करना चाहें तो वो मिट्टी के आधार पर भी पहचाना जा सकता है, जो विस्तारित अवधि के लिए संतृप्त या बाढ़ या अवायवीय स्थिति के विकास की विशेषता से जो बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवी के विकास को बढ़ावा देता है। यानी देखा जाए तो आप वेटलैंड के वो क्षेत्र भी मान सकते हो जिनकी मिट्टी जो होती है काफ़ी गीली होती है, और ये वेटलैंड के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि यहाँ पर अवायवीय यानी जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो है जंतु रह सकते हैं, ऐसे जीव जंतु काफ़ी देखने को मिल जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बैक्टीरिया और कवक, क्योंकि बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव का विकास को यहाँ पर काफ़ी बढ़ावा मिल जाती है, क्योंकि अवायवीय स्थिति होती है। इसलिए बैक्टीरिया और कवक जो है बहुत आसानी से पनपने लग जाते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के जिम्मेदार भी माने जाते हैं। तो देखा जाए तो वेटलैंड के ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये मिट्टियाँ अर्धभूमि के जल संतुलन को भी विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी जो है अर्धभूमि की जल संतुलन कैसे करता है, तो इस बात के लिए आप समझ सकते हो कि वह पानी के साथ जो है पानी जमा भी करते हैं, यानी समय के साथ धीरे धीरे पानी जमा कर लेते हैं। और ये पानी जो होता है पौधों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है ये आप समझ सकते हो। और भी छोड़ भी सकते हैं। अर्धभूमि वनस्पति के विकास का समर्थन भी करता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये क्षेत्र जो होते हैं अर्धभूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड, वो धीरे धीरे पानी को जो है एकत्र कर लेते हैं, जो पौधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये पौधे ग्रोथ में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। तो इस प्रकार जो है अर्धभूमि भूमि जो होती है वो पौधे के लिए एक आदर्शमय स्थान होती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के पेड़ पौधे उग जाते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर जीव जंतु के लिए भी बहुत तरह के सुविधाएं मिल जाता है। इसलिए जो अर्धभूमि की अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान है, और ये बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है, और देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारे समक्ष आएगा महात्मा गांधी जी के विचारधारा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ।
और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरा बच्चों का केयर है और ये बात हमारे दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करें, क्योंकि यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर 6वीं कक्षा से लेके एमए तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।